Yes, so we are starting with the word problems in the topic maxima minima. Last lecture I covered the conceptual part of this chapter along with some questions which were directly based on the analysis of the functions. Like the functions were given and we were asked to find out the maximum value, the minimum value. Okay, but now what we are going to do is we are going to create the function. Okay, so that will be the challenging part in word problems, to create the functions and then analyze that function for the extreme values. Okay, so let us start with a very simple problem right now. See, concentrate on the given to you. Wire of length 120 centimeters is bent to form a rectangle. Find its dimensions if the area of rectangle is maximum. So we need to find the dimensions so that the area is max. Okay, find dimensions. Like, so let us see what they are asking here. Is that a wire is bent to form a rectangle. So we have a rectangle formed from a wire whose length and breadth we don't know, dimensions we don't have. We are going to find those dimensions. So length मालूम नहीं है, let length be L, और breadth मालूम नहीं है. We don't know what is length, we don't know what is breadth. Okay, but one thing we certainly know is the perimeter. Perimeter is going to be 120 centimeters. So 2 times length plus breadth is 120 centimeters. Therefore, length plus breadth can be taken as 60 centimeters. Okay, the wire is of length 120 centimeters. So 2 times length plus breadth is going to be 120 centimeters. This is an important relation. Because of that, we are going to get length plus breadth as 60 centimeters. ऐसा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिलेशन ऐसा दिया ही रहेगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन बिटवीन द अननोन्स आपको दिया रहेगा. दैट कनेक्शन यू विल हैव टू यूज लेटर इन द प्रॉब्लम. अब करना क्या है? स्टेप 1 इज टू क्रिएट द फंक्शन. किसका फंक्शन बनाना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो व्हाट इज एरिया? हम लोग उसका फॉर्मूला लिखते हैं. वी नीड टू मैक्सिमाइज, we need to maximize area equal to length into breadth. Okay, area equal to length into breadth. That is, I can create a function in length here. Length variable है, breadth भी variable है. Length plus breadth is 60 है ना. लेंथ अगर 10 होगा तो ब्रेथ 50 हो जाएगा. लेंथ अगर 20 होगा तो ब्रेथ 40 हो जाएगा. लेंथ अगर 50 रहेगा तो ब्रेथ 10 हो जाएगा. सो वैसे हम लोग का लेंथ और ब्रेथ वेरी करेगा. हमको लेकिन लेंथ को वहां पे फिक्स करना है जहां पे एरिया मैक्सिमम आने वाला है. सो आई नीड टू मैक्सिमाइज द एरिया. आई नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ. डायमेंशंस फाइंड करना है. क्या रखना चाहिए हमको लेंथ, क्या रखना चाहिए हमको ब्रेथ, सो दैट द एरिया इज मैक्सिमम. सो एफ ऑफ एल वी आर गोइंग टू हैव लेंथ इनटू, और यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे द रिलेशन 1 एंड इट विल बी 60 माइनस लेंथ. सो ब्रेथ की जगह पे आएगा 60 माइनस लेंथ फ्रॉम 1 एंड that is it. That is it. We have got our function which we need to check. The function is 60L minus L square. अब इस फंक्शन को हम लोग को मैक्सिमाइज करना है. तो अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्टार्ट होगा. स्टेप 2, डिफरेंशिएट. तो आपको मिलेगा 60 माइनस 2L. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू L ही.
देन स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना है, तो एफ डैश एल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, उससे हमको एल 30 सेंटीमीटर्स मिलेगा, सो एल इक्वल टू 30 इज अ स्टेशनरी पॉइंट, दैट इज स्टेप 3। फिर हम लोग डबल डेरिवेटिव पे चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू पे हम लोग को कॉन्केव अप मिल रहा है या कॉन्केव डाउन मिल रहा है। सो एफ डबल डैश एल कैलकुलेट करेंगे, 0 minus 2, right? We are going to get f double dash l as minus 2, which is constant. At l equal to 30 also it is not going to change. So if you try to find out f double dash 30, at 30 you're going to get the value as minus 2, which is negative. So this is going to be step 1. This is going to be step 2, right? Step 1 is creating function. Step 2 is find f dash. Here we are not using first order derivative test. वो भी use कर सकते हैं, बिल्कुल use कर सकते हैं. It's your choice, आपको कौन सा use करना है. But I am going forward with double derivative. So यहाँ पे मैंने find कर लिया step 3 में stationary points. So we have found stationary points in step 3. Lastly, step 4 में concavity check किया. Okay, step 4 में हम लोग concavity check करेंगे. अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आएगा तो कॉन्केव अप हो जाएगा मिनिमा. सो वी आर गोइंग टू चेक द कॉन्केविटी. अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा बिकॉज इट इज कॉन्केव डाउन. अगर स्टेशनरी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो इट इज कॉन्केव अप. ओके, मेजॉरिटी सम्स इसमें मैक्सिमम मिनिमम में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही आएगा, मेजॉरिटी सम्स, बराबर. अच्छा, एक बार कॉन्केविटी चेक कर लिया, नेगेटिव आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर मैक्सिमा व्हेन L is 30, and you can also find out breadth from this. Breadth is going to be 60 minus L, which is also 30. So यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं therefore dimensions of rectangle with max area, right, are length equal to 30, right? Dimensions of rectangle with max area are length equal to 30 and breadth equal to 30. I would say units are centimeters each. Okay, so length is 30 centimeter, breadth is 30 centimeters. तो इससे हम लोग और एक रिजल्ट दिमाग में रख सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा ओनली व्हेन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ. दैट मींस रेक्टेंगल व्हेन बिकम्स अ स्क्वायर. द एरिया इज मैक्सिमम व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. All rectangles are not squares, but all squares are rectangles. So we say area is maximum in case of a rectangle when length is equal to breadth. Area is maximum in case of rectangle when it is a square. And you can see here, if we choose length as 30, if we choose breadth as 30, we'll get rectangle with maximum area. Okay, so that is our first sum. Please remember this procedure. You have to create a function, find its derivative, find stationary points by putting derivative equal to 0, and at those stationary points the fourth step is to find out the concavity. If it is concave down, maxima, double derivative is negative. If it is concave up, minima, double derivative is positive. Okay, so let us go ahead with the word problems. The next word problem says
there is a rectangular sheet of paper having area as 24 meters square. It is rectangle. The margin at top and bottom are 75 centimeters and at sides it is 50 centimeters. Margin at top and bottom are 75 centimeters and at sides it is 50 centimeters. What are dimensions of paper when the printed space is maximum? Right? Area of printed space is maximum. Understand the problem. There is a rectangular sheet whose area is 24 centimeters square. So we start with that. Okay. We have a rectangular sheet whose length, let us say, is x, whose breadth, let us say, is y, and what we want is the area. Now what we have been given is the area, and area of this rectangular sheet is 24 meter square. Area of this rectangular sheet is 24 meters square. Margin at the top and the bottom are left. Now, area is given in meters square. Understand, margin is given in centimeters, but we would like to convert it to meters again. So, I would say margin हम लोग top पे छोड़ने वाले और bottom में छोड़ने वाले, right? Top and bottom, the margin which we are going to leave is 0.75 meters. So यहाँ पे 0.75 meters आएगा, यहाँ पे भी 0.75 meters आएगा. ओके, सो मार्जिन टॉप पे और बॉटम में 0.75 meters है, जबकि साइड्स में 50 सेंटीमीटर ही छोड़ना है हम लोग को. साइड्स में हम लोग को यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है, बट दैट विल बी वेरी यू कैन से लेस एज कंपेयर टू द मार्जिन लेफ्ट एट द टॉप, राइट. सो यहाँ पे हम लोग ने 0.75 छोड़ा है, यहाँ पे हम लोग ने 0.75 छोड़ा है. ऐसे हम लोग देखने जाएंगे ये वाला साइड्स में, तो इट इज 0.5 मीटर्स. साइड्स में हम लोग देखेंगे तो इट इज 0.5 मीटर्स. तो साइड्स में इट इज 0.5 मीटर्स, टॉप में इट इज 0.75 मीटर्स, बॉटम में इट इज 0.75 मीटर्स. और फिर ये जो स्पेस अंदर बचता है ना, दैट इज व्हाट इज प्रिंटेड. सो ये अंदर का स्पेस हम लोग प्रिंट करने वाले हैं. दिस इज द स्पेस विच वी आर गोइंग टू प्रिंट. ओके, तो ऊपर हम लोग ने 75 मीटर्स, 0.75 मीटर्स, नीचे 0.75 मीटर्स छोड़ दिया है. साइड्स में हम लोग ने 0.75 मीटर्स छोड़ दिया है, और अभी हम लोग को वो प्रिंटेड स्पेस को मैक्सिमाइज करना है. सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पेपर सो दैट द एरिया ऑफ प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमाइज. सो वी नीड टू मैक्सिमाइज व्हाट? रेक्टेंगुलर शीट का तो एरिया दिया हुआ है, मार्जिन छोड़ने के बाद जो प्रिंटेड स्पेस रहेगा उसको मैक्सिमाइज करना है. सो वी नीड टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ प्रिंटेड स्पेस. अब प्रिंटेड स्पेस जो है वो रेक्टेंगल है. प्रिंटेड स्पेस जो है वो रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का लेंथ क्या रहेगा? तो ओरिजिनल पेपर x मीटर्स का है ना, y मीटर्स, x मीटर्स. सो ये x मीटर्स का हम लोग का पेपर है. उसमें से 0.5 मीटर्स यहाँ से निकालो, 0.5 मीटर्स यहाँ से निकालो. तो अभी लेंथ क्या हो जाएगा? अभी लेंथ हो जाएगा x माइनस 1 मीटर्स. 0.5 इस साइड से जाएगा, 0.5 इस साइड से जाएगा. तो हम लोग का ये न्यू लेंथ क्या हो जाएगा? न्यू लेंथ हो जाएगा x माइनस 1 मीटर्स. न्यू लेंथ नहीं बोलेंगे, लेंथ फॉर द प्रिंटेड स्पेस. प्रिंटेड स्पेस भी रेक्टेंगल है, इनटू अभी हम लोग का
ब्रेथ कितना है हम लोग बोलेंगे y, बट उसमें से 0.75 ऊपर से निकलेगा, 0.75 नीचे से निकलेगा, टॉप एंड बॉटम 0.75 जाएगा, यहाँ पे साइड्स में से 1 जाएगा, दोनों साइड्स का मिला के, यहाँ पे दोनों साइड्स का मिला के 1.5 जाएगा, सो इट इज y माइनस 1.5. आई अगेन रिपीट, टॉप पे और बॉटम में 0.75 निकालना है, दैट इज 1.5 निकालना है टॉप और बॉटम में से, और साइड्स में से 1 ईच 0.5 ईच निकालना है, दैट इज 1 आपको डिलीट करना है. सो वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस एरिया. ओके, सो दैट इज इक्वल टू xy minus 1.5x minus y plus 1.5. So area is this, right? अब इसमें से हम लोग को फंक्शन बनाना है, फिर हम लोग फंक्शन को एनालाइज कर पाएंगे. सो एरिया क्या होगा, xy तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट इज 24, राइट, प्लस 1.5. अब ये दो वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल हम लोग आगे लेके जाएंगे. लेट अस टेक फॉरवर्ड x ओनली. सो यहां पे आपका एरिया कितना हो जाएगा, 25.5 माइनस 1.5x माइनस यहां से आपको मिलेगा y विच इज 24/x. Okay, I repeat this. This becomes 25.5. This is minus 1.5x. This is minus y. So ये हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, उसमें से xy मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अभी y को भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया is 24/x from this relation which we have at the top here. And finally we have a function which is ready. Okay, that is what our first aim is. The first step is in every word problem sum. The first step is you have to create a function fx. Function fx कितना हो जाएगा, 25.5 minus 1.5x minus 24/x. स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 इसको डिफरेंशिएट करके स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1.5 x का डेरिवेटिव 1 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 24/x स्क्वायर, दैट इज डेरिवेटिव, माइनस 1/x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. देन वी पुट फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स f डैश x इक्वल टू 0. सो f डैश x इक्वल टू 0 डालोगे तो आपको मिलेगा 24/x स्क्वायर इक्वल टू 1.5. 24/x square is 1.5. Therefore, x square into, I can write this 1.5 as 3/2. Let me write 1.5 as 3/2 equal to 24. That implies after the calculation you will get x square as 16. 3 8s are. Okay, we can have that calculation here. 3 8s are. पहले तो 1.5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और वो 1.5 को 3/2 लिखा. देन वी हैव x स्क्वायर as 16. अल्टीमेटली x इज प्लस माइनस 4, दो ऑप्शन है, बट x क्या है, लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो x इज 4 सेंटीमीटर्स या 4 मीटर्स पे ही मुझे चेक करना है डबल डेरिवेटिव. ऑब्वियसली दो ऑप्शन आता है यहाँ पे, x इज प्लस माइनस 4, बट -4 हम नहीं लेंगे बिकॉज हम लोग को मालूम है वो हमारे डोमेन में ही नहीं है, हमारा लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो ये हो गया अपना स्टेशनरी पॉइंट. अभी हम लोग डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डबल डैश x. सो वो यहाँ से ही आएगा. वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट f डबल डैश x. सो f डबल डैश x में इसका हो जाएगा 0. यहाँ पे आपको मिलेगा 24 इंटू -2/x क्यूब. डेरिवेटिव निकाल के आप ये कर सकते हो चेक. यू आर गोइंग टू गेट -48/x
क्यूब। एफ डबल डैश 4, फाइनली हम लोग कॉन्केविटी चेक करेंगे, दैट इज द लास्ट स्टेप. इट्स गोइंग टू बी -48/64 विच यू कैन रिड्यूस, बट नो पॉइंट. यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ये नेगेटिव है. Yes, that's negative. And finally, what I want to find out is find the dimensions of the paper if the area of the printed space is maximum. तो पता चल गया कि maxima आएगा at x equal to 4 meters and we are going to have y का value as 6 meters. Therefore, the value of y is going to be 6 meters. Again, हम लोग को पेपर दिया था, उसका डायमेंशंस था 24 मीटर स्क्वायर एरिया. हम लोग को उसका डायमेंशंस फाइंड करना था, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, सो दैट द एरिया ऑफ दिस प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम. After all the conditions, after removing from the sides 0.5 centimeters from the 0.5 meters from the top, we are going to remove 0.75 meters. We get this new area, that is the area of the printed space. इसको हम लोग ने function in x बनाया ना. This is the first step, creating a function. ये हम लोग का first step हो गया, function बनाया. Second step में हम लोग ने इसको differentiate कर दिया. Third step में derivative equal to 0, x equal to 4 आ गया. That is the third step, that is stationary points. Stationary points का हम लोग को third step आएगा. Then we get fourth step, और fourth step है अपना डबल डेरिवेटिव निकालो और उस पर चेक करो कॉन्केविटी. यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, that means it is concave down. Therefore maxima at x equal to 4 and y equal to therefore 6 meters आएगा. So these are the dimensions. The dimensions should be right. So हम लोग को find out करना है dimensions for the printed space to be maximum. The dimensions should be x as 4 meters and y as 6 meters. That's our final answer. Okay, next word problem देखते हैं. Open box is to be cut out from a piece of square cardboard of 18 centimeters by cutting of equal squares from the corners and turning up the sides. Okay, so we are going to have an piece of square cardboard. ये हमारे पास है piece of square cardboard. उसमें से हम लोग को open box बनाना है. साइड इसका 18 सेंटीमीटर्स है और हम लोग equal squares cut off करेंगे from the corners and turning up the sides. Find maximum volume of the box. Okay, diagram बनाते वापस. Let me explain you what they are expecting from us is, हम लोग के पास square cardboard है. square cardboard है जिसमें dimensions जो है वो है 18 सेंटीमीटर्स. दोनों ऑब्वियसली साइड्स 18 सेंटीमीटर्स का ही रहेगा. ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करने वाले, कॉर्नर्स पे से वी आर गोइंग टू कट ऑफ स्क्वायर्स. सो ओपन बॉक्स इज टू बी मेड बाय is to be cut out from a piece of square cardboard of 18 centimeters by cutting off equal squares from the corners. So equal squares from the corners we are going to cut out. Okay, equal squares from the corners. अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे ना इसको x सेंटीमीटर लेते हैं, इसको भी x सेंटीमीटर लेते हैं, बिकॉज हम लोग को स्क्वायर्स ही कट आउट करने हैं. कॉर्नर्स में से वी आर गोइंग टू कट आउट स्क्वायर्स. सो इधर x सेंटीमीटर कट जाएगा, x सेंटीमीटर कट जाएगा, x कटेगा, x कटेगा, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x. वैसे हम लोग स्क्वायर्स निकाल देंगे फ्रॉम द कॉर्नर्स. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो साइड्स है उसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे और यहाँ से भी ऐसा बॉक्स बना देंगे. अब समझ में आ रहा है आपको, ये जो साइड्स है हम लोग इसको ऐसा यहाँ पे ऊपर ले लेंगे
और ये वाले जो साइड है उसको भी ऊपर ले लेंगे, तो एक बॉक्स बन जाएगा, राइट. सो लेट मी शो यू हाउ द बॉक्स विल लुक लाइक. सो बॉक्स का जो ये जो पार्ट है, दैट इज द लेंथ एंड द ब्रेथ, वो दोनों सेम रहेगा बिकॉज स्क्वायर बेस ही है. ओके, स्क्वायर बेस ही आने वाला है. सो अपना बेस जो है वो स्क्वायर होने वाला है इन द बॉक्स ऑल्सो, राइट. एंड आई कैन से द बॉक्स वुड बी लाइक, आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, अभी आपको लेंथ क्या मिल जाएगा. सी, यहां तक कट किया है, यहां पे कट किया है, इतना पार्ट जो है वो बचेगा ना, बाकी यहां से ऊपर आ जाएगा, यहां से भी ऊपर आ जाएगा, राइट. दिस इज ऑल्सो टेकन अप लाइक दिस. दिस विल ऑल्सो फ्रॉम द साइड्स टेकन अप. दिस विल बी टेकन अप. दिस विल बी टेकन अप. तो आपको चारों साइड से ये इसको रोल कर देना, मतलब रोल नहीं, ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, फोल्ड कर देना है, राइट. तो आप बोल सकते हो कि यहां पे अभी बचा हुआ है 18 माइनस 2x सेंटीमीटर्स. सेम आपका यहां पे साइड्स में भी बचा हुआ है, सेम 18 माइनस 2x, सेम यहां पे भी बचा हुआ है 18 माइनस 2x. और ये जो हम लोग का यहां पे जो हम लोग ने ये कट किया हुआ है स्क्वायर्स, और इसको हम लोग ने ऐसा ऊपर की तरफ लिया हुआ है, उसके कारण ही हम लोग को यहां पे हाइट जो है वो x मिलेगा. सो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x एंड x. आई रिपीट, ये x कट गया, यहां पे x कट गया, तो ये कितना बचा हम लोग का 18 माइनस 2x. सो 18 माइनस 2x इज गोइंग टू बी दैट लेंथ. द सेम 18 माइनस 2x इज गोइंग टू बी द ब्रेथ, राइट. वहां से भी ऊपर आ जाएगा, यहां से भी ऊपर आ जाएगा, यहां से भी ऊपर आ जाएगा, यहां से भी ऊपर आ जाएगा, चारों साइड्स में 18 माइनस 2x ही रहेगा. और कितना ऊपर आएगा, x सेंटीमीटर्स ऊपर आएगा. सो व्हाट वी वांट इज द वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम फॉर द बॉक्स, राइट. सो वी नीड टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम, दैट इज v इज इक्वल्स टू, ये रहा हम लोग का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो 18 माइनस 2x द होल स्क्वायर इंटू x. हो गया. डायरेक्टली हम लोग के पास फंक्शन आ गया यहां पे, जिसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना है. ओके, सो अगेन आई टेल यू, फंक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट भी है. यहाँ पे इमेजिनेशन देखो, हमारे पास 18 सेंटीमीटर्स का कार्डबोर्ड था, सब कॉर्नर से हम लोग ने x निकाल दिया, तो द न्यू लेंथ विल बी 18 माइनस 2x, द न्यू ब्रेथ विल बी x डिलीट करने पर 18 माइनस 2x. एंड ये अपन ने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, तब जाके 3D बॉक्स बनेगा. तो जो अपने ऊपर फोल्ड किया वो अपना हाइट बन जाएगा x. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट्स द वॉल्यूम. इसको मैक्सिमाइज करना है. सो लेट अस गो अहेड नाउ. f डैश x, यूवी रूल अप्लाई कर देता हूं. एक्सपेंशन भी कर सकते थे, बट आई विल अप्लाई यूवी रूल एंड वी गेट 18 माइनस 2x द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू 2 टाइम्स 18 माइनस 2x raised to 1 into derivative of 18 minus 2x is minus 2. So I get 18 minus 2x the whole square into derivative of x is 1. UV rule apply कर रहे हैं, u into derivative of v plus v into derivative of u. That is what we are going to get. Okay? Yes. Then we go ahead. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. यहाँ से हम लोग 18 माइनस 2x कॉमन निकाल सकते हैं. आई बिलीव 18 माइनस 2x अगर हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा 18 माइनस 2x. 18 माइनस 2x कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा 18 माइनस 2x. दूसरे ब्रैकेट में हम लोग को मिलेगा माइनस 2x माइनस 4x. So what we are going to see here is 18 minus 2x
into 18 minus 6x. We can take यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से -2 कॉमन ले लो और यहाँ से -6 कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा x -9 into x -3, right? So that is going to be 12 into x -9 into x -3. तो ये जो है वो मैंने यूवी रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करके फिर सिंप्लीफाई किया है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, अगर यूवी रूल अप्लाई नहीं करना है तो इसको आप एक्सपैंड कर दो, इसको आप एक्सपैंड कर दोगे तो वो भी ईजी हो जाएगा और आपको सेम चीज़ मिलेगा। ओके, नाउ what I'm going to do is I'm going to find out the stationary point. So f dash x is 0. स्ट्रेट अवे मैंने यूवी रूल अप्लाई किया इसलिए मेरा फैक्टराइज फॉर्म में आ गया सीधा। इसको आप एक्सपैंड करो, डेरिवेटिव लो, आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसमें आप अगर वापस फैक्टराइज करोगे तो सेम फैक्टर्स आपको भी मिलेगा। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन यूवी रूल, आई गॉट दी फैक्टर्स स्ट्रेट अवे मुझे रूट्स मिल जाएगा x is 3 या तो 9। सिंस x कांट बी 9, अरे x 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x 9 लेंगे तो अपना बेस दोनों 0 हो जाएगा, मतलब x 9 लेंगे तो हमारे कार्डबोर्ड के 4 पार्ट्स हो जाएंगे ना, 4 स्क्वायर बन जाएगा, इधर एक स्क्वायर बनेगा, इधर एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा, बॉक्स नहीं बनेगा। x अगर 9 लेंगे तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे। सो x 9 नहीं हो सकता है। सो हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन है चेक करने के लिए, दैट इज x is 3, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, कंफर्म है। तो हमारा प्रोसीजर में डेरिवेटिव 0 आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब ये स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, बट अभी कॉन्केव डाउन है तो मैक्सिमम, कॉन्केव अप है तो मिनिमम, राइट? अब कॉन्केव डाउन है कि कॉन्केव अप है वो चेक करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो अगेन आई हैव f dash x as 12 into x square minus 12x plus 27। यहाँ पे मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया है, राइट? यहाँ पे यूवी रूल अब अप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस विल बी इजी। f डबल डैश एक्स क्वाड्रेटिक का हम लोग को सीधा मिलेगा 2x minus 12 लीनियर एट 3। इफ आई एम गोइंग टू चेक f डबल डैश 3 मुझे मिलेगा 12 into 6 minus 12, that is -6 आएगा, तो 12 into -6 is -72, which is negative, so therefore we get maxima at x equal to 3 and max volume is equal to, yeah, tell me max volume क्या रहेगा? max volume के लिए आपको यहाँ पे 3 substitute करना है। you're going to get 18 minus 6 the whole square into 3, right? that we can find out। 18 minus 6 the whole square मतलब 12 square आएगा, 144 into 3, that is going to be 12, 1 carry over, 12, 13, we are going to get 1 carry over, 4, 32, right? 4, 32, and the unit, since it is volume, we can put it as centimeter cube. Okay, units are going to be centimeter cube. So again I will tell you what the problem is. We are going to make an open box from a piece of square cardboard of 18 centimeters. Okay, यहाँ पे 18 centimeters उसका sides है, x सेंटीमीटर्स के हम लोग कॉर्नर्स कट करेंगे। दिस इज हाउ द डायमेंशंस विल बी। वॉल्यूम आ गया, स्टेप 1 fx आ गया, स्टेप 2 उसका डेरिवेटिव आ गया, स्टेप 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आ गया, स्टेप 4 लास्ट। यहां पे पता चला कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है
तो मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, व्हेन x इज 3 सेंटीमीटर्स, तो 3 सेंटीमीटर्स के साइज का आपको स्क्वायर्स कट ऑफ करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी, आपको 3 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, 18 माइनस 6 द होल स्क्वायर इंटू 3, 144 इंटू 3, 432 centimeter cube. So final answer is, if you want the maximum volume here, the length or the sides of the squares must be 3 centimeters each, and volume will be 432 centimeter cube. That's the max volume. Okay, that's the final answer. So I hope you have understood this problem. Right? For maximum volume, you're going to put x as 3 in the volume ka function. Okay? Yes.